Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por favor, venid rápido, rápido. Hay que empezar la clase. La clase de hoy será muy interesante, ¿eh? Vais a aprender muchísimo en esta clase con estas estructuras y también aprenderemos a conjugar los verbos. जल्दी जल्दी आ जाओ. I am waiting. Hola a todos. ¿Habéis leído el título? ਤੁਸੀਂ टाइटल पढ़िया बोर्ड ते की लिखा होया? आज दा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी होएगा, but en esta clase no solamente vamos a aprender a expresar obligaciones, sino unas estructuras muy importantes. Hola a todos. Ok. En esta clase voy a hablar en Punjabi y también en español para que vosotros tengáis un conocimiento de dos idiomas. ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆਏ. ठीक है, देखो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है. आज ਤੁਸੀਂ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो. Expresar obligaciones en español. ¿Qué significa expresar obligaciones? O sea, ¿qué significa la palabra obligación? ¿Qué मतलब होता है? ¿Alguien me puede explicar? क्या कोई मैनू दस सकदे कि ओब्लिगासियन दा मतलब क्या होता है? ¿Qué significa? Vale, no tienes ni idea. Vale, no pasa nada. Obligación ਹੁੰਦਾ है, हाँ जी, obligation. जिद्दां आपां कहंदे आ ना कि कोई चीज़ आपां नूं करनी ही करनी हुंदी है, अपने लिए मजबूरी बन जाती है, ज़रूरत बन जाती है. ठीक है, उन्होंने आपां कहंदे आ obligation. In español decimos obligaciones. पर ये obligations दसन दे बहुत तरीके हुंदे ने. हाँ, लाजमी, जो चीज़ लाजमी करनी ही करनी होती है, muy bien. ठीक है, तो जो चीज़ें लाजमी होती हैं उनके लिए हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो मुझे पहले आपको ये बताना था. हेलो एवरीवन, क्लास स्टार्ट कर दें. ठीक है, estaba esperando a todos los seguidores lo que querían asistir a esta clase, ਜਿਹੜੇ कि ज्वाइन करना चाहते ਸੀਗੇ. Entonces vamos a empezar. चलो जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ. सत श्री अकाल जी. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि असी obligaciones ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ express करिए, ਕਿੱਦਾਂ दसीए. ठीक है, cómo podemos expresar las obligaciones en español. Y para expresarlas hay unas estructuras muy importantes y puedo decir que son bastante importantes. ठीक है, क्योंकि इन्हां दे बिना I don't think so कि असी स्पेनिश विच मतलब डेली कुछ ना कुछ इदां दीयां गल्लां करदे हां. hablamos
ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਿਆ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3 ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ el verbo tener के ਦੇ ਨਾਲ, मतलब tener के más infinitivo, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, आई नो वेरी वेल, इनफिनिटिवो, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਈਨਰ डिफरेंस है, ठीक है। Tá, tener que más infinitivo es la primera estructura más común para expressar una obligación, ठीक है। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ tener क्या है, infinitivo क्या है ना। मतलब ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ un verbo ਇਨਫਿਨਿਟਿਵੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लाइक करते रहना अगर तुहानू कुछ पसंद आए, समझ आए, ठीक है। पर हाँ निमर में मैनू मोटिवेट करन लई, मेरा हौसला वधाउण लई, ठीक है। ओके, दसो के सिग्निफिका un verbo infinitivo? Uncertain future. Bueno, no. ओके, इनफिनिटिवो दस दियाँ। चलो मैं तुहानू अज एक स्ट्रक्चर दस दियाँ, तुसीं मैनू दस्सिओ कि उहदे विच इनफिनिटिवो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू कहना है कि कल मैनू हॉस्पिटल जाना पैना है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीटा है, ठीक है। तो मैं दे लई एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ठीक है। tengo que ir al hospital, ठीक है, mañana, porque tengo una cita muy importante। ਹੁਣ ਇਸ सेंटेंस ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ कुछ चीज़ां ने, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ਇਹ तेंगो कित्थों आया है, इस verbo tener तो आया, राइट। के ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। फिर उस तो बाद एक इनफिनिटिवो क्या हुई, मैनू जरा दसोगे इस पार्ट दे विच इनफिनिटिवो कित्थे है। ¿Dónde está el infinitivo? Exacto, verbo ir. Muy bien. Muy bien. Verbo ir. Perfecto. Vale. Os doy otro ejemplo. Si yo digo, tienes que hablar con tu jefe। मैंने दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इनफिनिटिवो कित्थे है। ¿Dónde está el infinitivo en esta estructura? Hablar, perfecto, muy bien. Hablar, muy bien, vale. Un ejemplo más. Tenemos que abrir la tienda a las 10 de la mañana। Por favor, decídmelo, ¿dónde está el infinitivo? Abrir, perfecto, muy bien। Entonces, ¿habéis visto una cosa? La cosa más común entre 3 frases es un infinitivo। तुसी देख रहे हो कि कॉमन क्या है। ir, hablar
y también abrir, ये सब क्या हैं? ये सारियां वेरबोज हैं, ठीक है। तो ये वेरबोज किस तरह दिया है? एक्सैक्टो, ये किस तरह दिए वेरबोज हैं? ये बिना कॉन्जुगेट कीतियां हुईयां वेरबोज हैं, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ वर्ब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, quando hablamos de un verbo, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ conjugate ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right? pronombre ਦੇ according. por ejemplo, si yo digo yo hablo español, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कि hablo conjugated है या नहीं है? ¿Sí o no? ¿Es conjugado o no? Yes, conjugated है, right? लेकिन ये conjugation किस चीज़ तो बनी है? केड़े एक्शन तो बनी है? केड़ी वर्ब तो बनी है? hablo केड़ी वर्ब तो बने? rápido, rápido, por favor, decídmelo. Hablar, exacto. Entonces, cuando un verbo no está conjugado, यानी कि जदों तुसी किसी भी verbo दे एंड विच AR, ER या IR देख रहे हो, por ejemplo, si yo digo abrir, si yo digo comer, है ना, तो तुसी देख रहे हो AR, IR, AR सब लग्या होया. इट मीन्स इस तरह दियां वेरबोस नूं असी कहंदे आ वेरबोस infinitivos, ठीक है, verbos infinitivos. Y cuando conjugamos un verbo, entonces no es un verbo infinitivo, es un verbo conjugado. तो तुहानू पता चलिया कि infinitivo क्या हुंदा है? Infinitivo हुंदा है जदों तुसी कोई verb यूज कर रहे हो पर असी उन्होंने conjugate नहीं कीता, असी ओदी completo जिहड़ी form हुंदी है ना, वो यूज कर रहे हैं. जिवें hablar, comer, trabajar, entender, lo que sea, hay un montón de verbos, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं. लेकिन जदों मैं इस hablar तो hablo बना लिया, abrir तो abro बनाता या comer तो como बनाता, then it's not a infinitive verb, ठीक है. ये तो क्लियर है सारे नो? प्लीज अगर क्लियर है तो मैं दसो. Yes? ¿Tenéis claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Vale, me alegro mucho. Ir and ire. ओके, किदे विच की फ़र्क है? इर एंड इरे. ओके, देखो इर जो है ना, इर दा मतलब हुंदा है टू गो, जाना, ठीक है. लेकिन इरे ये क्या है? ये है फ्यूचर दी फॉर्म. इरे मतलब मैं जाऊंगा, ठीक है. बाले कंटिन्यूआमोस, ठीक है. क्लियर है जिद्दां हुण तुहानू कि इनफिनिटिवो क्या चीज़ हुंदी है. हुण आपां सब तो पहले क्या करते हैं? Vamos a conjugar el verbo tener, porque sin conjugación del verbo tener, ¿cómo podemos construir frases? नहीं बना सकते, right? तो आपा की करना है? आपा पहला verbo tener दी conjugation बनाना है, ठीक है? Estoy muy segura que algunos de vosotros ya sabéis la conjugación del verbo tener. Y el verbo tener es un verbo irregular. ¿Vale? Es un verbo irregular. Vale, continuamos. Vale. ठीक है. Vale, verbo tener. Vamos a conjugar el verbo. Yo tengo. Tú tienes.
ella tiene, मैं सिर्फ él लिख रही हूँ, ella, podéis escribirlo. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen। ये है कॉन्जुगेशन, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ आई थिंक पता होएगी। ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो सानू क्लारामेंटे आई के रिकॉर्डार लो, आई के मेमोरी सार लो, इन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। हुण ये साडा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप है के, थर्ड स्टेप है इन्फिनिटिव, ठीक है। हुण असीं पहले कॉन्जुगेशन देख ली। tenéis claro lo de la conjugación? अगर क्लियर है कॉन्जुगेशन, देन seguimos। Y también se ve bien, se oye bien, तनु आवाज़ ठीक आ रही है, तनु बोर्ड ठीक दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है ना। Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor decídmelo। vale vale muy bien, ठीक है। तो तेनेर है तुहाडी फर्स्ट कॉन्जुगेशन जिहड़ी है तेनेर दी, तुसी देख रहे हो। यो तेंगो, आई हैव, तू tienes, वाले। मैं साथ साथ आपको उर्दू में भी बताती रहूँगी, ठीक है। तो आप साथ साथ जो है समझ सकते हो, ठीक है। इर एंड वो ही सेम है कि हाँ जी, देखो मैं दस दिया ਜਿਹੜੀ इर ਹੁੰਦੀ है ना वेरबो, जिदा मैं ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ कि वेरबो इर ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है टू गो, है ना, जाना। लेकिन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ बोलते हैं कि मैं जाता हाँ, मैं जाता हूँ, तो आप क्या इदा बोल रहे हैं जाना, आप बोल रहे हैं जाता हूँ। जिदा ही मैं उन्होंने सेंटेंस के विच कामयाब किया, मैं उन्होंने प्रेजेंट टेंस च बनाया, और फिर इर जो कि इन्फिनिटिवो है, वो फिर क्या हो जाएगी, उसकी कॉन्जुगेशन यूज होएगी, जो कि हो जाएगा यो वोई। यानी कि यो वोई इर दी कॉन्जुगेशन है, ठीक है। हुण तुसी कहोगे मैं जानता हाँ, इर दा मतलब जान होता, तुसी ऐदा तो नहीं बोलोगे ना यो इर, तुसी बोलोगे यो वोई, ठीक है। तो एक कॉन्जुगेशन है, ये भी कराऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। ओके, फर्स्ट स्टेप है साडी कॉन्जुगेशन, ठीक है। हुण असीं ऑब्लिगेशन सीख रहे हैं। ऑब्लिगेशन हुंदा जदों तुसी सामने वाले नूं कहंदे हो, जब आप सामने वाले इंसान को कहते हैं कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना, यू हैव टू डू दिस, आपको करना ही करना पड़ेगा। तो हमारी मजबूरी समझ लीजिए, ज़रूरत समझ लीजिए, लाजमी समझ लीजिए, ज़रूरी हो जाता है। तो हमें जब इस तरह के सेंटेंस बनाने होते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ किसी चीज़ के पोजेशन की बात करते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलूँ मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक स्कूल है, मेरे पास 5 पेन है, तो मैंने आपको यही बोला ना कि मेरे पास क्या है, तो वो मेरा पोजेशन है कि मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ वर्बो तेनेर का यूज़ करती हूँ, इन दोनों चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यहाँ कोई ऑब्लिगेशन तो बता ही नहीं रही हूँ, है ना। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या है ना। तो मैं बोल सकती हूँ tengo una casa grande, tengo una escuela grande, tengo 2 bolígrafos, जो भी है, राइट, वो सिर्फ tener अकेले के साथ लगता है। Pero cuando expresamos una obligación, जब हमें सामने वाले को बोलना है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना ही करना है। हम जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, पहले तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, फिर तुम खेलने के लिए जा सकते हो। तो मैंने उस बच्चे पर क्या लगाई, उस बच्चे पर एक ऑब्लिगेशन लगा दी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। तो ये ऑब्लिगेशन कैसे बताएंगे, अब ये सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ऑब्लिगेशन किस पर लगाई गई है, किसे करना है वो काम। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं मुझे पहले होमवर्क ख़त्म करना पड़ेगा, फिर मैं खेलने के लिए जा सकती हूँ, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन किस पर है बताइए, किसको काम करना पड़ेगा, आप सब बताइए पहले। यो पर है, राइट, यो पर है ना, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा ना काम,
मुझे पहले होमवर्क फिनिश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर ये समझिए कि किसे करना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे पहला स्टेप चाहिए तेनेर का यो, जो कि है यो तेंगो। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ पहला स्टेप यो तेंगो। अब जैसे कि मैं एक ऑब्लिगेशन बता रही हूँ, तो साथ में मुझे दूसरा स्टेप क्या चाहिए, के, यो तेंगो के। अब बताइए मुझे करना क्या पड़ेगा। मैंने बोला मुझे होमवर्क खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, होमवर्क को खत्म करना पड़ेगा। यानी कि एक्शन क्या है, वो क्या चीज है जो मुझे करनी पड़ेगी, मुझे होमवर्क को खत्म करना पड़ेगा। अब खत्म करने की वर्बो इंफिनिटिव क्या होती है बताइए जरा। एग्जैक्टली फिनिश क्या होती है बताइए। terminar, perfecto, terminar, bueno, hacer is to do, करना है ना, पर खत्म करना terminar, acabar, right? muy bien, terminar los deberes, ठीक है। जो deberes वर्ड है ना वो प्लूरल रहता है, ठीक है। yo tengo que terminar, अब आपने देखा कि जो ये terminar है, क्या मैंने इसे कॉन्जुगेट किया, नहीं किया। आ रहे है तो वो रहता है, मैंने ये नहीं किया कि मैंने इसको भी यो बना दिया, ऐसा कभी नहीं करना। porque en una frase completa cuando hay dos verbos siempre conjugamos un verbo y el segundo verbo no se puede conjugar। ये हमारी लैंग्वेज में नहीं होता है, ये सिर्फ इस लैंग्वेज में नहीं है, स्पेनिश में नहीं है, इंग्लिश में भी ऐसा है और लैंग्वेजेस में भी ऐसा है, ठीक है। तो यो तेंगो के टर्मिनर क्या करना पड़ेगा, खत्म, los deberes, ठीक है। मतलब ये मुझ पर ऑब्लिगेशन लग गई है कि मुझे पहले होमवर्क खत्म करना है, ठीक है। प्रीमेरो, अब मैंने पहले भी तो बोला ना वर्ड, तो पहले को क्या बोलते हैं, प्रीमेरो। प्रीमेरो yo tengo que terminar los deberes और फिर मैं खेलने जा सकती हूँ। अब मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनिए, मैं बोल रही हूँ खेलने जा सकती हूँ, यानी कि luego puedo jugar, या सिर्फ हाँ मैं खेल सकती हूँ, उसके बाद खेल सकती हूँ ना। luego puedo jugar en el parque o lo que sea, ठीक है। primero yo tengo que terminar los deberes, मुझे पहले काम खत्म करना पड़ेगा, काम खत्म करना है। जब इस तरह के सेंटेंस हम अपनी लैंग्वेज में सोचते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस देती हूँ, ठीक है। मुझे खेफे से बात करनी पड़ेगी, मुझे खेफे से बात करनी है, बातें की है, दोनों में ऑब्लिगेशन है। तो कैसे बोलेंगे, किसको खेफे से बात करनी है, किस पर ऑब्लिगेशन लगी है बताइए। después भी लगा सकते हैं, बिल्कुल, hay muchas palabras, muchos sinónimos, luego, después, entonces, ये भी लगा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। किस पर है ये ऑब्लिगेशन, मुझ पर है ना। तो किसको बात करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी। yo tengo que hablar, yo tengo que hablar mi jefe, no, yo tengo que hablar कौन, मान लीजिए मुझे कहना हो मुझे मेरे खेफे से बात करनी पड़ेगी, कौन मी खेफे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये मुझ पर ऑब्लिगेशन दे रहा है, ये पार्ट मुझे ये बताता है कि किस पर ऑब्लिगेशन है, और ये पार्ट बताता है कि किस बात की ऑब्लिगेशन, करना क्या पड़ेगा इसके लिए, अवलार करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, कंप्लीट नहीं करूंगी, आपको मुझे कंप्लीट करके बताने होंगे, ठीक है। vale, अच्छा क्लियर है यहाँ तक, tenéis claro, así que puedo continuar। ok Nuzat, ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás? tengo que hablar con mi jefe, muy bien,
मैम estoy, देखिए estoy नहीं, soy tu estudiante, ठीक है, estoy नहीं लगाते हैं. Bien, ok, perfecto, continuamos. ओके, लाइक कर देना अगर आपको समझ में आ जाए, ठीक है. vale. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. मतलब बेसिकली पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए बोलूँगी, फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दूँगी, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करें. फिर मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर सिखाऊंगी, क्योंकि जब हम पहला सीखते हैं ना तो डेफिनेटली हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. फिर जब हमें थोड़ा बेस क्लियर हो जाता है फिर दूसरा भी हम कर सकते हैं, ठीक है. ओके, अब मान लीजिए मैं आपको कहूँ मेरी सिस्टर को पढ़ाई करनी पड़ेगी पास होने के लिए, ठीक है. अब बताइए किस पर ऑब्लिगेशन है, किसको करनी पड़ेगी पढ़ाई, बताइए. मी hermana, exacto, है ना, मी hermana. शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी और को भी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, समझ आना चाहिए उनको भी, ठीक है. तो बताइए किसको करने की ज़रूरत है, मेरी hermana को ना. तो मैं लिखूंगी मी hermana. देखिए मी hermana कौन है, es un sujeto, यानी ये सब्जेक्ट है जिसने ये काम करना है ना, मी hermana. अब मी hermana कौन सा पर्सोना है बताइए, यो है, तू है, एलिया है, नसोत्रोस है, बताइए क्या है. एया है ना, तो एया के लिए क्या कॉन्जुगेशन आनी चाहिए तेनेर की, बताइए. tercera persona, tiene, muy bien, पर tiene के साथ के भी लगाइए ना, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन का पार्ट है, राइट. tiene के, राइट, क्योंकि मुझे के भी साथ में ही चाहिए ना, क्योंकि ऑब्लिगेशन लग रही है. ओनली tiene नहीं चाहिए, ठीक है. mi hermana tiene के क्या, इन्फिनिटी को क्या करना पड़ेगा उसको, बताइए क्या करना पड़ेगा मेरी hermana को पास होने के लिए. estudiar, exacto, estudiar. mi hermana tiene que estudiar. देखो पढ़ाई करना estudiar, लेकिन अगर किसी किताब को पढ़ते हो आप तो leer, ठीक है, estudiar. अच्छा ठीक है, muy bien है, habéis hecho muy bien. para क्या, पास होने को क्या बोलते हैं, पास होने की वर्ब को क्या बोलते हैं, para aprobar. muy bien, muy bien. mi hermana tiene que estudiar para aprobar. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की कि हमने पारा के बाद भी इन्फिनिटिव लगाई है, ठीक है. पारा के बाद कभी भी वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं करना है, कभी नहीं बोलना है पारा apruebo, para hablo, para abro, ठीक है, कभी भी नहीं. después de la preposición para siempre hay que añadir el infinitivo, ¿vale? Vale, hacemos una frase más, ठीक है. एक और क्वेश्चन एक और सेंटेंस बनाते हैं. ओके, मेरे पापा को और मुझे दादी के घर जाना पड़ेगा उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है. मेरे पापा को और मुझे दादी के घर जाना पड़ेगा. अब बताइए किन पर ऑब्लिगेशन है, mi padre y yo. अब मुझे बताइए यहाँ क्या आना चाहिए, mi padre y yo, कौन सा कॉन्जुगेशन आना चाहिए तेनेर का, tenemos. muy bien, tenemos आएगा कि tenemos के आएगा. muy bien, किसी ने तो सेंटेंस भी बना दिया. muy bien है, muy bien. tenemos que ir a casa de mi abuela. perfecto.
मी पादरे इयो तेनेमोस के, ठीक है। देख एक चीज ध्यान रखिए, तेने होता है, कई बार स्टूडेंट्स लिखते हैं तिएने, ठीक है। तेनेमोस के क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब जाने को क्या बोलते हैं, ईर, वेर्बो इन्फिनिटिवो, ठीक है। तेनेमोस के ईर कहाँ, आ ला कासा देमी, मेरी दादी के घर, मेरी नानी के घर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करने के लिए, मैंने बोला था उनकी हेल्प करने के लिए। पारा आयुदार क्या आएगा, उनकी हेल्प कैसे बोलते हैं, उनकी हेल्प पारा आयुदार ले, ठीक है। पारा आयुदार ले, कोई भी है, ठीक है। आपको क्लियर है। इसके बाद फिर मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर सिखाऊंगी। ओके लेट्स सी, आपने क्या लिखा है, तेंगो के ईर कौन मी पारा कासा दे, नो 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 नो, इसको थोड़ा ठीक कीजिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन ठीक कीजिए। पहले आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि मैंने बोला है मेरे पापा और मुझे, यानी कि हम हो गए ना, तो हम के लिए क्या चाहिए, नोसोत्रोस, ठीक है। तो नोसोत्रोस के लिए तेनेमोस के, आयुदार ले एंड आयुदार ला। बुएनो, सच बताऊं ना अगर आपको, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में समझना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूंगी कि ला और ले में ये फ़र्क होता है, नहीं, न से पुएदे, बेटर है कि मैं आपको इस पे अलग ही सिखाऊं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, मतलब जैसे अभी हमारे पास 7 दिन है, तो मैं आपको ये ले और ला दोनों का जो सेंटीडो है ना वो क्लियर करूँगी। ऐसे बताऊंगी तो आपको कभी क्लैरिटी नहीं आएगी और मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। muy bien, ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना, क्लियर है। तो देखिए जो तेनेर के मास इन्फिनिटिवो का स्ट्रक्चर होता है ना, ये हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ एक्सटर्ना, है ना, कोई ऐसी चीज़ें पूरी करनी होती हैं जो हमें कुछ पाने के लिए हेल्प करती हैं, या हमारे लिए बेसिकली एक तरह से ऑब्लिगेशन हो जाती है कि करनी पड़ेगी अगर कुछ चाहिए तो, ठीक है। 7 डेज रहेंगी ये क्लासेस, ठीक है। आयुदार ले लिखा मैंने, दे नहीं लिखा, वो आपको लग रहा होगा, ले लिखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी बाहर जाने के लिए, यानी बाहर अब्रॉड जाने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है ना, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तेनेर के जो वर्ब है ना वो थोड़ी सी डायरेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं तुझे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ना, तो हम उनको बोलते हैं तिएनेस के, ठीक है। तो ये जो वर्ब है थोड़ी सी डायरेक्ट वे में होती है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको एक और स्ट्रक्चर सिखाने वाली हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा पहले ये बताइए आप सबको क्लियर है, tenéis claro? Tengo que estudiar para ir a España, ¿vale? Para ir a España, ठीक है, क्लियर है। देखो मैंने टेस्ट लेना है बाद में, अगर मुझे किसी ने बोला ना कि नहीं आता है, मैंने काम करना पड़ेगा फैमिली, muy bien, चलिए ये सेंटेंस बनाते हैं, बड़ा बढ़िया सा सेंटेंस बोला आपने, मुझे काम करना पड़ेगा मेरी फैमिली को पालने के लिए। देखिए पालने का मतलब क्या होता है कि हमें सरवाइव करना पड़ेगा, है ना, हमें उनको खाना खिलाना, तो डेफिनेटली काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसे कैसे बताएंगे, प्लीज़ कोई बता सकता है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। मुझे काम करना पड़ेगा अपनी फैमिली को, देखिए पालने के लिए नहीं, मतलब लाइक सरवाइव करने के लिए, उनको अच्छी लाइफ देने के लिए। Alguien por favor, tengo que trabajar para servir a mi familia, vale, muy bien. Tengo que trabajar para mantener a mi familia, muy bien. Tengo que trabajar para, vale. यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट है, कोई बात नहीं। अच्छा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ठीक है। बहुत कम जानते होते हैं, ठीक है। तो आपने जो बोला ना मानतेनेर, वो बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ब है,
तो muy bien, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो ये लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है, वो ये नहीं कहते para, क्या कहते हैं, ayudar नहीं कहते, है ना, mantener बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी कम यूज़ होता है। उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं para ganarse la vida। देखिए मैंने अभी यहाँ फैमिली का कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है। फैमिली को खिलाने के लिए, उनको पालने के लिए डेफिनेटली mantener अच्छा रहेगा, लेकिन जब मान लीजिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि जिंदगी को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, है ना, तो गानार से लवीदा होता है कि जिंदगी में हमारे पास ऑब्वियस पैसे होंगे, काम होगा, तो ही हम खाना खा पाएंगे, है ना। तो ये बहुत स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। mantener a mi familia भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और एक चीज है para, अच्छा एक और भी बताती हूँ, आप मुझे बताओ जरा सेंटेंस। अच्छा पहले वो कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। tengo que trabajar para ganarse la vida, मुझे काम करना पड़ेगा जिंदगी का जैसे बोलते हैं ना गुजर बसर करने के लिए, उसको बोलते हैं ganarse la vida। बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। और एक बताती हूँ, मुझे स्पेनिश सीखनी पड़ेगी स्पेन में सरवाइव करने के लिए। ये तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट वाला परफेक्ट एग्जांपल है, हम सबको ये करना पड़ेगा। बताइए, मुझे स्पेनिश सीखनी पड़ेगी, मुझे स्पेनिश सीखनी पड़ेगी स्पेन में सरवाइव करने के लिए। बताइए। सानू रोटी बनानी पवेगी लोगों की सेवा करने लिए। आपने तो बड़े सारे नए नए सेंटेंस निकाले हैं, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। Tengo que aprender español para servir en España। Vale, vale, no está mal। अच्छा para vivir, मैं देख रही हूँ, मैं वो इंतज़ार कर रही हूँ कौन वो वाली वर्ब यूज़ करेगा। para servir वाले, सानू पैसे इकट्ठे करेंगे, बिल्कुल हाँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको, पर पंजाबी में नहीं, स्पेनिश में। यो tengo que aprender español para vivir। देखिए आप सबने ना अच्छा सेंटेंस बनाया बिल्कुल, लेकिन एक वर्ब है जिसका मैं वेट कर रही हूँ। यो tengo que aprender वाले, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए मैंने बोला सर्वीर क्या होता है, लाइक किसी को सर्व करना, है ना, जैसे हम खाना सर्व करते हैं उसको सर्वीर बोल सकते हैं, जैसे किसी को हेल्प करना सर्वीर बोल सकते हैं। लेकिन सरवाइव करना सिग्निफिका सोब्रेविवीर, है ना। अब हम लोग चाहें ना चाहें, हमें ये लैंग्वेज क्यों सीखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा इसके बिना सर्वाइवल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, tengo que aprender español para sobrevivir en España। ये रही वो वर्ब, ठीक है। para vivir नहीं, para sobrevivir, ठीक है। क्लियर है आप सबको, समझ में आई। सोब्रेविवीर पंजाबी, सोब्रेविवीर सरवाइव करना, जैसे किसी चीज़ को लेके कैसे बोल सकती हूँ, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। अच्छा कोई बताओ, सरवाइव, सोब्रेविवीर सरवाइव को हम पंजाबी में क्या बोलेंगे। कभी कभी ना आते नहीं है वर्ड्स, a veces no salen palabras cuando lo más necesitamos। जी कोशिश, सोब्रेविवीर, हाँ जी, आगे जाने के लिए, है ना। गुजारा, गुजर बसर, वही वाला। Tengo una duda siempre, un segundito. Tengo una duda siempre tenemos que poner el acento encima de que, no, ¿qué va? No। देखिए जो के होता है ना, वो इस स्ट्रक्चर में तो नहीं आएगा,
ठीक है, डोंट वरी। ये जो के होता है con este acento o sea tilde, ये होता है what। जब हम कहते हैं ना के pasa hombre, तो के ये वाला है, वो ये वाला नहीं है। ये जो के है ना, इसको बोलते हैं हम relativo, मतलब ये सेंटेंस को जोड़ता है, बीच में कंप्लीट करता है ना, तो इसमें नहीं होना चाहिए। No es necesario poner tildes o acentos en que, depende del contexto, depende de la frase, lo que estamos usando, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है, आगे बढ़े। Continuamos, seguimos para aprender la segunda estructura. Continuamos, seguimos para aprender la segunda estructura. एक बारी बोलिए सी, tenemos claro। हाँ जी, संघर्ष, बिल्कुल बिल्कुल, गुजारा करने के लिए। muy bien, gracias, gracias, muchísimas gracias por decirme, por ayudarme, ठीक है। muy bien, me alegro mucho que hayáis tenido claro, vale, muy bien। चलें आगे, vale, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सीखना है हम सबको, ठीक है। अच्छा, कोई चीज नहीं समझ आए प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। La segunda estructura, दूसरा स्ट्रक्चर है deber más infinitivo, otra vez infinitivo, nos toca otra vez infinitivo, दोबारा से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, ये भी एक स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर ऑब्लिगेशन और ओपिनियन दोनों को एक्सप्रेस करता है। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि टेंगो के hablar contigo है, तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, मतलब इट्स समथिंग वेरी अर्जेंट, ठीक है। और अगर मैं कहूँ yo sé que debo hablar contigo, मुझे पता है कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, ये मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी। अब आपने देखा कि मैंने बोला टेंगो के और देबो, तो जो देबो है यानी कि वो वर्बो देवेर से बना है, ये स्ट्रक्चर यूज होता है, ऑब्लिगेशन भी एक्सप्रेस करता है, pero suavemente, समझ रहे हैं आप, कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम हार्श, एक होता है बड़ा डायरेक्ट वे में बात करना, जैसे हम बोलते हैं टेंगो के, टीएनएस के, पर सम टाइम हम सामने वाले को ऑब्लिगेट कर रहे होते हैं कि तुम ये करो, लेकिन हम कहीं ना कहीं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, हम इतना डायरेक्ट नहीं बोल रहे होते, ठीक है। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं देबेर मास इन्फिनिटिवो। और मैं आपको सीधा सीधा एक इसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि जो देबेर है ना, जब इस तरह का कोई सेंटेंस बनता है तो हमारी लैंग्वेज में वो ऐसा साउंड करता है। मान लीजिए मुझे पढ़ना चाहिए पास होने के लिए, तो अब मैंने ऐसा तो नहीं बोला मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने बोला मुझे पढ़ना चाहिए। तो चाहिए इट मीन्स कि ये भी मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, बट कहीं ना कहीं आई नो वेरी वेल कि ये ओपिनियन भी है, ये ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, पर एक बड़े सॉफ्ट वे में ही मुझे बोला जा रहा है, या मैं अपने आप से ये बात कर रही हूँ। तो देबेर मास इन्फिनिटिवो थोड़ा सा सुआवे है, es una estructura suave, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, अब हमें इन्फिनिटिवो तो पता है भाई, अब हमें देबेर का कॉन्जुगेशन सीखना है। देबेर का कॉन्जुगेशन होता है यो देबो, तू देबेस, ella debe, nosotros debemos, vosotros debéis, ellos deben, ठीक है। यह है कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये पार्ट है, ध्यान रखिए इसमें के नहीं है, वो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं
आई शुड या आई मस्ट, आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्पीक टू द बॉस, तुम्हें बॉस से बात करनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि मैं आपको ऑब्लिगेशन जैसी बातें कर तो रही हूं, लेकिन किसी और तरीके से। देखिए देबेर का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, 2 सेंटेंस हैं इसकी। देबेर यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, और वैसे देबेर का मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी, जैसे हमारी कोई ड्यूटी होती है। ठीक है, अब मैं कहूँ पढ़ाना तो मेरी ड्यूटी है ना, enseñar es mi deber। ठीक है, तो अब ये जो आप दोनों सेंटेंस देख रहे हो, ये शुड जैसा साउंड करते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं ना, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं यो देबो। फिर जो करना चाहिए उसकी वर्ब लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि यो देबो, क्या यो देबो पढ़ाई को बोलते हैं, ये हो गया आई शुड, है ना, यानी कि ये हो गया यो देबो। इसके साथ क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा और आगे लेके जाती हूँ। मुझे रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। इसे कंप्लीट कीजिए प्लीज। यहाँ तक तो हमने कर लिया। मुझे 2 घंटे रोज पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम। अब मैंने कम से कम भी ऐड कर दिया। नहाना चाहिए, बिल्कुल। आ 2 horas, ओरा नहीं, 2 horas, आ नहीं आएगा। ठीक है, देबो के नहीं, नो 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 नो, es un error bastante común। के नहीं लगाना है कभी भी। ठीक है, स्ट्रक्चर में के नहीं है। मिनिमो 2 horas, देबो के estudiar 2 horas। मिनिमम नहीं, इसको हम बोलते हैं वाले, इसको हम बोलते हैं, कम से कम को हम स्पेनिश में बोलते हैं al menos। ठीक है, al menos, debo estudiar al menos 2 horas। अगर मैं कहूँ रोज, cada día। देखिए मैंने कितना सेंटेंस बना दिया। एक हमने बहुत अच्छा सा सेंटेंस क्रिएट कर दिया कि मुझे पढ़ना चाहिए कम से कम 2 घंटे रोज। ठीक है, अब मैंने बोला तुम्हें बॉस से बात करनी चाहिए। किसको बात करनी चाहिए, तुम्हें, यानी कि हमें चाहिए तू। तो फिर तू देबेस, के नहीं लगाना है, ओहो, देबेस hablar con el jefe। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा और सेंटेंस आगे कर देती हूँ। तू देबेस hablar, यहाँ ये लगे। ठीक है, तू देबेस hablar con el jefe, काम के बारे में, तुम्हें काम के बारे में बात करनी चाहिए कैफे से। तो यहाँ क्या आएगा बताइए काम के बारे में। देबेस, एक सेकेंड, दूधा, देबेस और देबेरियस son mismo। देखिए जो देबेस है ना, वो भी आप सामने वाले को कहीं ना कहीं एडवाइस कर रहे हो या ऑब्लिगेशन दे रहे हो, लेकिन देबेस ना एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है। देबेरियस थोड़ा सा सुआवे हो जाता है, सॉफ्ट वे में। जब हम कहते हैं ना तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, तो अगर मैं किसी को बड़े सुआवे मेंते कह रही हूँ तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, तो मैं बोलूँ देबेरियस estudiar, है ना। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके या थोड़ा सा उसे ऑब्लिगेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी देबेस। देबेस मतलब मस्ट, देबेरियस मतलब शुड। तो शुड मस्ट होता है, तो हम इसको एज अ शुड भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। sobre trabajo, sobre el trabajo। ठीक है, tú debes hablar con tu jefe para trabajar। vale, para trabajar हो गया काम के लिए, पर मैंने बोला काम के बारे में। इन देबो एंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देबो एंड केरेस। देखिए देबो होता है मुझे करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, तो यो देबो estudiar। रीड करना चाहिए तो यो देबो लेर। ठीक है, तू देबेस hablar con el jefe sobre। देखिए बारे में क्या बोलते हैं,
बारे मैंने बोला ना काम के बारे में, तो बारे को बोलते हैं सोब्रे, ठीक है, सोब्रे एल ट्राबाjo, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब आप सेंटेंस में आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। Os propongo una situación y tenéis que decirme unos consejos, unas obligaciones, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी abuela बीमार है, बहुत हफ्ता हो गया मेरी abuela बीमार है, desde hace una semana mi abuela no se encuentra bien, está enferma, está en hospital, ¿qué debo hacer? मुझे क्या करना चाहिए कि वो ठीक हो जाए। अब आप सब मुझे ना एडवाइस भी दीजिए और इस स्ट्रक्चर के साथ एडवाइस दीजिए, जो भी आपके माइंड में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप चाहे स्पेनिश में दीजिए, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, बताइए, फिर हम वो सेंटेंस बनाएंगे। Debería llevarlo tu abuela el médico, ¿vale? Debería hablar, प्लीज़ मैम एक लाइन वाली कोई एग्जाम्पल, ओके। देबोदार मेडिसिना मतलब मुझे मेडिसिन देनी चाहिए। आप तो मुझे दे रहे हो ना ये एडवाइजेस वगैरह, मुझे कह रहे हो ना, तो आप मेरे लिए देबेस यूज़ करो। देबेस दार मेडिसिनास, देबेस दार दिनेरो, वाले tú deberías llevar a médico, ¿vale? Tú deberías llevar al médico. Debes curar a tu abuela en un buen hospital, ¿vale? Debes, देखिए curar नहीं हम ज़्यादा यूज़ करते, debes tener un tratamiento para tu abuela, mi abuela está enferma, debes poder cita। अच्छा मुझे चलिए सीधा बहुत जेंटली समझाती हैं। टुडे आई joined you first time and I'm liking you so much, thank you so much, it's my pleasure। मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। Debes llevar al médico, vale, muy bien है, muy bien, अच्छे सेंटेंसेस बना रहे हैं आप। चलिए अब मैं आपको ना कुछ सेंटेंस देती हूँ, आप बना के बताओ, ठीक है। आप मुझे बताइए कैसे बोलेंगे, तुम्हें तुम्हारी अबुएला का ख्याल रखना चाहिए, कैसे बोलेंगे। देबेरिया और देबेस सेम नहीं है। देबेरिया हम तब यूज़ करते हैं जब हम थोड़ा सॉफ्टली पोलाइटली सामने वाले को एडवाइस करते हैं, और देबेस थोड़ा सा कह लीजिए कि थोड़ा सा डायरेक्ट वे में हम जब सामने वाले को एडवाइस करते हैं, ठीक है। मतलब जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन बन जाती है। Debes cuidar tu abuela. Debes cuidar a tu abuela. Debes cuidar a tu abuela. Debes cuidar de tu abuela. Muy bien. Muy bien. अच्छा, अगर आपको बोलना हो तुम्हारी दादी को या तुम्हारी नानी को हेल्दी खाना खाना चाहिए, कैसे बोलेंगे। A tu abuela, perfecto, perfecto, muy bien, tú debes cuidar a tu abuela, perfecto। कैसे बताएंगे तुम्हारी दादी को हेल्दी खाना खाना चाहिए। अब वैसे आप बीमार होते हैं तो खाना तो हेल्दी खाना पड़ेगा ना। देबेस से पहले तू लगाइए या नहीं लगाइए ये आपकी मर्जी है, क्योंकि जो ये यो तू एले या होते हैं ना प्रोनोम्ब्रेस, ये ऑप्शनल होते हैं, आप लगाओ ना लगाओ, da igual। Debería de comer alimentos saludables, muy bien, muy bien, una frase perfecta। Debo comer, नहीं, अरे मुझे नहीं खाना है, बीमार तो मेरी दादी हुई है, ठीक है। Tu abuela debe comer, muy bien, debe comer la comida saludable। देखिए मेरी क्लास में तो ये चलता है ना, हमें पढ़ना नहीं होता, हमें साथ साथ हंसते भी रहना होता है, एंजॉय भी करना होता है और सीखना भी होता है। तो abuela debe comer algo saludable, debe comer algo saludable, या debe comer la comida saludable। अच्छा, तुम्हारी दादी को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी दादी को
Perdón, ma'am, me voy a dormir. Vale, vale, no pasa nada. Buenas noches. जाओ जाओ, जिसने सोना है जाओ. अब पढ़ाई करने के लिए 5-10 मिनट और रुक जाते. तुम्हारी दादी को जंक फूड नहीं खाना चाहिए. बताओ जंक फूड को क्या बोलते हैं. La comida insaludable, la comida buena, tu abuela come comida. No, tu abuela. देवेर कहाँ गई. देखिए सेव तो नहीं रहते, पर मैं कोशिश करूँगी अगर मैं इसे सेव कर पाई तो मैं इसे सेव करके YouTube पे अपलोड कर दूँगी. ठीक है, आप बाद में भी देख सकते हो. Una pregunta. Sí, por favor, dímelo. La comida chatarra. Muy bien. Comida rápida. Comida basura. Muy bien. देखिए जंक फूड होता है ना, उसको हम कोमिदा रापिदा भी बोलते हैं. ठीक है, कोमिदा रापिदा. ठीक है, कोमिदा चातारा, कोमिदा और क्या बोल सकते हैं, बासूरा, कोमिदा बासूरा. तो ये आपके लिए ये 3 आप वर्ड्स बोल सकते हो. Si alguien me había preguntado algo. ओके, मैं कोशिश करूँगी. Tu abuela no debe comer la comida basura. Muy bien, muy bien. जंक फूड, कोमिदा रापिदा. देबेर की ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ. देबेर देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ देबेर, ਵੈਸੇ देबेर ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦਾ. ਕੋਮੇਰ देवे नो कोमेर रापिदा. नो देबेर. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ नो ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, नो ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ देबे ਤਾਂ नो देबे, देबे नो नहीं. ठीक है. Vale, muy bien. Vale, 5 minutos más. Comer sana está bien. देखिए comer la comida sana. ठीक है. तो abuela no debe comer. देबेर नहीं लगा ना, देबेर दी कॉन्जुगेशन बनाओ. ठीक है. ओके, चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ सेंटेंसेस ਦਿੰਨੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ रात को 10 बजे क्लास है 7 दिन के लिए, यानी आज हमारा फर्स्ट डे है. por favor मुझे आप सबसे एक ही जो रिक्वेस्ट करनी है कि आप सबको रोज़ क्लास लगाने आना है. ठीक है. देखिए मैं आपको रात को आपके लिए क्लास अटेंड आपको दे रही हूँ, क्लास पढ़ा रही हूँ, तो मुझे है कि आप सब सीखें. ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा कल. ठीक है. ओके, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ. ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली आपको होमवर्क देने वाली हूँ. ठीक है. चलिए, अब सिचुएशन ये है कि ओके कोरेक्ट करना है. un segundito. Debes curar a tu abuela en un buenos. Debes curar. Debes curar या debes tener un tratamiento en un buen hospital. ठीक है. अच्छा, पहले मुझे वो बताना है, आपको होमवर्क देना है. ठीक है. चलिए, मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ. ठीक है. मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम आ रहा है अगले हफ्ते. ठीक है. और मैं नर्वस बहुत हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ. ठीक है. तो मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी सिचुएशन है यो un segundito, hombre. मेरी सिचुएशन है yo quiero aprobar el examen de matemáticas. ठीक है. मुझे मैथ्स का एग्ज़ाम पास करना है, matemáticas. y estoy muy nerviosa और मैं बहुत नर्वस हूँ.
क्या करना चाहिए मुझे? के देवो आसेर, मतलब आप लोगों को मुझे एक तरह से समझाना है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें कंसंट्रेट करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि मुझे ना सेंटेंस दीजिएगा कि मैं एग्जाम को कैसे पास करूं, कैसे नर्वस ना हूं, ठीक है? ये आपके लिए सिचुएशन है। दे ले भले, ठीक है। बताइए, ये जो क्वेश्चन है आपको इस पे सेंटेंस बनाने हैं। कल आप सब जब क्लास दोबारा से लगाएंगे, है ना, तो आपको मुझे सेंटेंस बताने हैं जी। प्रैक्टिस करेंगे ना, 7 डेज तो अभी हम हैं, क्लासेस लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी पूछना होगा, कुछ नहीं पता चलेगा तो आपको मुझे पूछना है, पर आपको कोशिश ज़रूर करनी है। तेनेर का भी क्वेश्चन दे देती हूँ। ओके, ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, यो quiero aprender español, ठीक है। मैं जो है स्पेनिश सीखना चाहती हूँ। que tengo que hacer, मुझे क्या करना पड़ेगा स्पेनिश सीखने के लिए? hacer para aprender español. Lo siento por las letras, अगर आपको मेरी राइटिंग ना समझ आए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है, ठीक है। Vale, muy bien, entonces buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir, por asistir a mi clase. Ha sido un placer. Adiós, buenas noches. कल 10 बजे, por favor, 10 बजे। थैंक यू सो मच। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, प्लीज़ कल क्लास लगाना है, ठीक है। बहुत कुछ सीखना है हमें इन दिनों में। gracias a vosotros. Mañana nos vemos a las 10 de la noche.